ये डिसीजन होता ही नहीं डॉग्स के ऊपर। अगर कुत्ते वोट दे सकते थे, ये कभी होता ही नहीं डिसीजन, फिर तो इनके पीछे पीछे भागते। गवर्नमेंट से अपना संभला नहीं, कोई भी उन्होंने काम किया नहीं, स्टरलाइजेशन की नहीं है। अब देखिए अब कौन सा संभला नहीं है। ये डॉग की ये डॉग तो ये है मर्डर किया और साफ कर दिया, मर्डर किया और सबूत मर्डर किया, पहले सबूत तो खत्म कर दिया। ह्यूमंस को पकड़ो जिनको आपने पैसे दिए थे इनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, और जिन्होंने किया नहीं, पहले वो इंसाफ होगा, फिर इसका सोचेंगे। रिगार्डिंग मास रीलोकेशन ऑफ डॉग्स, बिल्कुल बाइस्ड डिसीजन है, आउट ऑफ पर्सनल हेट्रेड को डिसीजन दिया गया है। वो देखिए बिल्कुल बायस्ड और आउट ऑफ पर्सनल हेट्रेड ये डिसीजन लिया गया है। उनकी खुद की पर्सनल डॉग हेटर होंगे, दैट इज व्हाई उन्होंने वो मोटो किसी की नहीं सुनी, कुछ भी नहीं किया गया, एकदम से डिसीजन दे दिया, और वो भी एक फॉल्स और फेक न्यूज के ऊपर। अनु मैडम, अगर हमें क्वेश्चन है मेरा, आज उन लोगों को डॉग से प्रॉब्लम है, उन्होंने डॉग हटा रही है, कल उनको बर्ड से प्रॉब्लम होगी, आसमान साफ चाहिए, फिर हमसे प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं चाहिए, बाकी एक एक सबको खत्म करते जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो यही आ गया ना कि जिससे प्रॉब्लम है उसको हटाते जाओ, फिर रहेगा कौन धरती पे। ना कोई ग्राउंड लेवल ते कोई फैक्ट चेक किते ने, ना कोई दिल्ली गवर्नमेंट तो कोई पूछा गया, ना कोई उथों दे आधार चेक किया, ना चेक किया गया शेल्टर होम किन्ने ने, ना उन्होंने ये पता डॉग किन्ने ने, जिन्होंने ये ही नहीं पता डॉग किन्ने ने दिल्ली NCR दे विच, उन्हां दा खाना पीना रहना सहना किवें प्रबंध करनगे। ये चीज पहला तो उन्होंने ग्राउंड लेवल ते करदे ऑब्जर्व भी ये दो डॉग अलग अलग टैरिटरी दे आपस च रह सकते ने, रह ही नहीं सकते, तुसीं किद्दां इकट्ठे रख लोगे। इन्हां नूं ये चाहिदा सीगा, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਡੋਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੌਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੌਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 19-21 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 19-21 ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਡੌਗ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਕਿਊਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੌਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਰਡਰ ਆ, ਲੋ ਆਹ ਆਰਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਫੈਕਟ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਸਟੈਪ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ जा के प्रोटेस्ट करांगे। आने वाले टाइम च हर एक स्टेट दे विच हेल्प फॉर एनिमल, पीपल फॉर एनिमल वालों धरने दिते जाणगे। आज हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ अपने बच्चों की, इन बच्चों के लिए, इनके हकों के लिए। हम लोग हैं जो जंगल काट के यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं और अब हम इन्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं।
हम यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जगह पे, हम उनको उनके घरों से तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन अब हम उनके जीने का हक भी छीनना चाहते हैं। हमें कोई गारंटी नहीं है कि शेल्टर्स पे उनके मेडिकेशंस का ध्यान रखा जाएगा, उनके खाने का ध्यान रखा जाएगा। तो हम किस बेसिस पे आपको ये हक उनका छीनने दे? हम यहाँ पे एटलीस्ट उनकी केयर तो कर रहे हैं, उन्हें खाना तो दे रहे हैं, उनके मेडिकेशंस का तो ध्यान रख रहे हैं। हमें क्या गारंटी कि आप वो चीजें उतने ही ध्यान से करेंगे? आपके स्ट्रीट डॉग कितने हैं घर? मेरे स्ट्रीट डॉग्स, अगर मैं आपको सच में बताऊं, मेरे पास एक रेस्क्यू है, उसके आगे से 3 बच्चे हैं मेरे पास, वो हमारे साथ ही रहते हैं। अब हम अपनी गली में भी डॉग्स को फीड करते हैं। मेरे पापा की शॉप गयासपुर में है, वहाँ पे कम से कम नहीं तो हमारे पास 15 कुत्ते हैं जो हमारे पास रोज फीडिंग लेते हैं, और जिनमें से 3 हमारी दुकान पे ही रहते हैं। वो अपनी मर्जी से हमारी दुकान में किसी भी टाइम आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उनका है। हम उनको अपनी जगह अपनी मानते हैं कि ये उनकी जगह है। हम ये नहीं सोचते कि हम ये सोचते कि ये उनकी ब्लेसिंग्स है। हम उन्हें खाना दे रहे हैं तो आज हमारे पास घर है, हम उन्हें खाना दे रहे हैं तो आज हमारी दुकान इतनी बड़ी है। उनकी ही ब्लेसिंग्स है हमारे पास। हम अगर बेजुबानों के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में हमें भगवान की ब्लेसिंग्स उसी वे में मिल रही हैं। कैसा लग रहा है ये, कैसा क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये जजमेंट बिल्कुल गलत है। कैसे आप खुद बताइए, वहाँ पे गवर्नमेंट रन शेल्टर्स है ही नहीं। ये उठा के लेके कहाँ पे रखेंगे थे? जब शेल्टर्स ही नहीं तो हमें क्या पता वो उठा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता मार दें। ये लेबर डॉग्स है, 3 लाख डॉग्स है, 3 लाख शेल्टर्स है। कहाँ जाएंगे? आपके पास इतने शेल्टर्स हैं? अभी तक वहाँ पे सिर्फ NGOs के शेल्टर्स हैं, गवर्नमेंट रन शेल्टर एक नहीं, 8 हफ्तों में आप कैसे जजमेंट पास कर रहे हैं? बहुत ही गलत हो रहा है दिल्ली में, बहुत ही ज्यादा। मैं उसके पूरे मैं एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि ये चीज हो रही है। मैं रोक क्यों रही हूँ क्या? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि वहाँ की डॉग ऐसे चले जाए। मुझे सच में बहुत इमोशनल फील हो रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि 3 लाख डॉग्स थे, कहाँ जाएंगे वो 3 लाख डॉग्स? वो बेचारे फ्रेंड्स होंगे, साथ में फैमिली होंगे, वो लोग अलग अलग कर दिया जाएगा, कितना हर्ट होगा उनको भी। उनके अंदर भी तो फीलिंग्स है, जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स है वैसे भी उनके अंदर फीलिंग्स है। तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि प्लीज ये चीज जो भी हो रहा है ना, वो चीज प्लीज वहां से ना हो। और ये सारे ना बेजुबान जानवर है, हाँ वो बेजुबान डॉग्स है, उनको हर्ट होता है, उनके अंदर भी फीलिंग्स है। अब उनको आप हटा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दोगे। 3 लाख डॉग्स है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अब पता नहीं क्या होगा। थैंक यू। आपने रखा डॉग? हाँ मेरे घर में, मेरे गली में 2 डॉग्स है, काली और भूरी। एक फैमिली मेंबर बन जाता है। हाँ एक फैमिली, मेरे घर में भी डॉग है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार है डॉग से, बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, अगर इतना सा भी चोट लग जाता है कोई भी स्ट्रीट डॉग्स को, मैं बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को ना ठीक कराई हूँ। किसी भी डॉग्स को कोई भी प्रॉब्लम्स होता था ना, मैं उसका इलाज कराई हूँ अपनी तरफ से पैसे देके। मैं 2-2, 3-3 दिन सोती नहीं हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा उनके लिए, मेरे को बहुत टेंशन हो। आंखों में आंसू आपके आ रहे हैं? सच में मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो सबको ना लाइक वहाँ से ना हटाया जाए, और वो लोग सारे ना वहाँ पे खुशी खुशी रहें जैसे रह रहे हैं।